Independence of the judiciary means that it is not under the control of the legislature or the executive. The judges do not act on the direction of the government or according to the wishes of the party in power. That is why all modern democracies have courts that are independent of the legislature and the executive. India has achieved this. The judges of the Supreme Court and High Courts are appointed by the President on the advice of Prime Minister and in consultation with the Chief Justice of the Supreme Court. अब हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है. स्वतंत्र है इसका मतलब ये बेटा कि जैसे आपने देखा व्यवस्थापिका और कार्यपालिका. व्यवस्थापिका निर्धारित करती है कार्यपालिका के कार्य को या वो उनके ऊपर कंट्रोल रखती है, पर हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो स्वतंत्र है. उसके ऊपर ना ही व्यवस्थापिका का प्रभाव है ना ही कार्यपालिका का. वो अपना काम स्वतंत्र रूप से करती है. वो अपना कार्य स्वतंत्र रूप से करती है. भले ही सरकार, कोई भी सरकार सत्ता में हो, वो सरकार भी न्यायालय के मामले में या न्यायालयों के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है. इसीलिए उसको कहा जाता है कि न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र और शक्तिशाली है. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की घोषणा राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर और प्रधानमंत्री के साथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सहमति से बाकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है. यहाँ तक समझ में आया बेटा? अब हम देखते हैं कि किस तरह से जजेस के अपॉइंटमेंट्स होते हैं. Supreme Court. At the highest level, there is a Supreme Court under the Indian judicial system. The Supreme Court is the final and Supreme Court of India. All the courts of country are subordinate to it. इसका मतलब क्या हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है और उसको मदद करने के लिए बाकी कोर्ट्स होते हैं जो हमने पहले देख लिया है. अब हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का संगठन किस प्रकार से होता है. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. फर्स्ट, नंबर ऑफ जजेस एज पर आर्टिकल 124 ब्रैकेट में 1 of the constitution. The parliament by making a law can make changes in the number of the judges. Presently there are 30 judges and a chief justice in the Supreme Court. Second, appointment of judges. Appointment of judges of the Supreme Court are made by the President of India. The President consults the Chief Justice of India before making such appointments. Third, qualifications of the judges. A judge of the Supreme Court should have following qualifications. First, he or she should be citizen of India, should have worked as a judge in any high court or 2 or more courts continuously for at least 5 years, or should have acted as an advocate in one or more than one high courts for at least 10 years. And third, in the opinion of the president, should be a distinguished jurist. Fourth है tenure of judges and procedure of impeachment. Judges of the Supreme Court can remain in their post till the attainment of 65 years of age. But they may, if they so wish, resign from their post before this period. If both the houses of parliament in same session request the president by passing
a resolution by 2/3 majority of members present and voting to remove a judge on the ground of proved misbehavior or inefficiency. In that case, the president may order the judge to tender resignation from his or her post. Fifth, pay allowances and pension of judges. The parliament by law decides pay and allowances of the judges. So also the judges are entitled to facilities like monthly allowance, travelling allowance, house allowance, staff car, etc. They are also entitled to pension and gratuity as per rules. Immunities of judges. No person or institution can publicly criticize the works of honorable judges. Even the parliament or legislative assemblies cannot criticize any of their judgments individually or in a combined manner. Seventh, oath by the judges. Every judge has to take an oath in the format laid down by the Constitution before assuming office. The President administers oath of office to the Chief Justice and in respect of other judges. Ban on practicing by judges. After retirement, a judge of the Supreme Court cannot practice in any court of India or appear before any authority as an advocate. अंडरस्टैंड बेटा. अब हम इसको हिंदी में. नंबर ऑफ जजेस. सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए ये तय करता है हमारा संविधान. और संविधान के अनुसार वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 30 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है और एक मुख्य न्यायाधीश है. सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति प्रधानमंत्री घोषित करता है, राष्ट्रपति घोषित करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, और मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर बाकी 30 जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति की जाती है. अब सर्वोच्च न्यायालय का जज बनने के लिए क्या क्या पात्रताएं होनी चाहिए. तो सबसे पहला कि वो या भारत का नागरिक होना चाहिए. दूसरा पात्रता यह है कि हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में उसने कंटिन्यूअसली 5 साल काम किया हो या फिर वकील के तौर पे किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल तक वकीली की हो. और तीसरा महत्वपूर्ण यह है कि राष्ट्रपति के निगाह में वो एक अच्छा अधिवक्ता हो. तो ऐसे लोग सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं. अब एक बार आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन गए तो आप कब तक काम कर सकते हो. तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 साल की उम्र तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं, पर अगर उनकी खुद की इच्छा हुई तो वो इस कार्यकाल के पहले अपना त्यागपत्र दे सकते हैं. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 साल की उम्र तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं. न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया हमारे संविधान में है, जिसको कहा जाता है महाभियोग. ये महाभियोग एक तरह से अविश्वास का प्रस्ताव होता है और दोनों सदनों में एक साथ, जब दोनों सदनों में कामकाज चल रहा हो तब इस महाभियोग को पेश किया जाता है. और इस महाभियोग पर दोनों सदनों के सदस्य से इनके खिलाफ 2/3 बहुमत अगर मिलता है तो फिर ये जो न्यायाधीश है वो अपने पद से पदच्युत हो सकते हैं. पर अभी तक भारत के इतिहास में, मैंने जब से हमें आज़ादी मिली है
तब से अभी तक एक भी मामला ऐसा नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से पदच्युत किया गया हो। अब इनको अलाउंस कितना मिलता है और इनको जो सैलरी है वो कितनी मिलती है, तो ये भी तय कौन करता है? पार्लियामेंट तय करता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कितनी सैलरी दी जाए। पर इनको बाकी बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है। कौन कौन सी फैसिलिटीज़? तो देखो, मंथली अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, हाउस अलाउंस, स्टाफ कार एंड और निवृत्ति के बाद इनको पेंशन भी दी जाती है। अब जजेस के खिलाफ कोई भी व्यक्ति उसकी आलोचना नहीं कर सकता है। राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने दिए हुए निर्णय के ऊपर कहीं पे भी आलोचना नहीं कर सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के बाद उनको शपथ ग्रहण करनी पड़ती है और ये शपथ ग्रहण करवाते हैं राष्ट्रपति, और मुख्य न्यायाधीश फिर बाकी न्यायाधीशों को शपथ ग्रहण करवाते हैं। और एक बार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश निवृत्त हो गए तो उसके बाद वो कहीं भी वकीली नहीं कर सकते हैं। समझ में आया बेटा यहाँ तक?